Fine then, bachcha log. We'll start with next topic of the chapter. Today we got to finish it, right? You all are aware about it. What we are going to learn today? Do you have any idea? Yes, tell me. Pteridophyta. Exactly. Division Pteridophyta. Are you going through those notes which I have sent in a soft copy? Even you all got a hard copy also, na? Yes, sir. I heard that. Yeah, I heard that. Fine then. So you Total keep 6 learning modules simultaneously. per subject. Yeah, it is for 12th standard also. I know. So now keep studying, keep solving multiple choice questions. Theory, I am giving you the best possible theory. What you need to do is just solve multiple choice questions as much as you can. And this Sunday, instead of Sunday, we will have an exam on Saturday. So you people start preparing for the same chapter. Is it okay? Of a Clear? plant kingdom. Yes. Kingdom Plante or Plant Kingdom you prepared for this Sunday. But Sunday actually you have got major test, I heard. So we will keep exam on Saturday. Is that okay? What do you say? सर संडे को मेजर टेस्ट नहीं है, संडे को केमिस्ट्री का टेस्ट. हाँ, तो इसीलिए हम लोग सैटरडे को ले लेते हैं. We'll have test one day prior, so there should not be any confusion. Fine बच्चा लोग. Yes, sir. ठीक है. चलो, हो जाओ शुरू. And yes, your cover up class is also there today, na? Yes, Shri and one more student is there. Yes, sir. Your remaining chapters I will be teaching. What's the timing given? 7:30 क्या timing to बोला? 8:30. ठीक है. Sir, but which चलो हो जाओ chapter शुरू. is going to be taught? 2 chapters I finished na before this. One was your Living World, first chapter, and another chapter was your Animal Kingdom. Sir, This is third chapter we are learning. Living World Huh? and What do you say? Kingdom I have done, sir. Which one? Which one? Living World and Animal Kingdom I have done. How you did? Sir, Yourself? for school I have studied just yesterday. You see now how you feel. If you feel you need it, you attend it. So let's proceed then. Shall we? Division Pteridophyta. तैयार है बच्चा लोग? बताओ मुझे. हो जाओ शुरू चलो. Yes, sir. So division Pteridophyta में there are 2 words. That is pterido and phyton. So the word Pteridophyta is made up of 2 words, pterido and phyton. Now pterido means fern, phyton means plant. So they are commonly called as the fern plants. ठीक है बच्चों? Pteridophyta में there are 2 words, that is pterido or terrace is another name for the pterido is a terrace and phyton is a plant. So fern plants. All right. Now what are the basics or important things you should remember about this is this is the first group of the plants which was terrestrial plants. You can call them as the first terrestrial plants. Because before this what we studied, you remember? सर ट्रैकियोफाइटा टेरिडोफाइटा में आता है कि ब्रायोफाइटा. They have vascular bundles. Of course, tracheophytes means with vascular bundles. So they are the first plants who were terrestrial plants. Not only that, these are the first vascular plants. Vascular, or you also can call them as what? Tracheophytes. They are first vascular or tracheophytes with xylem and phloem, right? But they don't have seeds. So those who do not have seeds, what do you call them as? Cryptogams. So they are seedless vascular plants. First seedless vascular plants. Did you understand this, bachcha log? They are the first terrestrial plants. They are the first vascular plants or tracheophytes. They are seedless plants. Cryptogams means what? They do not have seeds or their sex organs are not showy. So they are seedless plants. I hope you understood this, bachcho. Okay. Now they can also be called as, reptiles of the plant kingdom. What was the other name for
Bryophyta, you remember? Amphibians Where of plant kingdom. exactly. So after amphibians now comes creeping animals. So these are called as reptiles of the plant kingdom. This question might come in your examination. Reptiles of plant kingdom. You should know this word. Possibly expected there in your NEET examination too. Reptiles of the plant kingdom. Okay. Not only that, even these are the first plants to have true roots, stem, and leaves. First plants who have got what they have got? They have got true roots. इसके पहले वाले फाइलम में हमने ग्रुप में हमने पढ़ा था डिवीजन में they have root like structures, Rhizoid. stem like structures, yes, and leaves like structure. Here they have true roots, true stem, and true leaves. All right, this is clear to everyone. They have got true roots, true stem, and true leaves like structures. Now, when it comes to other details or characteristic features of these plants, we can say that these plants are very beautiful plants. They are grown purposely also in the gardens as they look very beautiful. So they can be medicinal plants or they can be ornamental plants. So habitat, when you talk about, when it comes to their habitat, what can we say is that they can be grown into the gardens. All right, they can be grown into the gardens. They can be cultivated into. So ornamental plants, as I said, medicinal plants also you can call them as ornamental plants, medicinal plants. You will not see at all the places. They grow at a specific place or a specific environment. So you will not see very common. Soil erosion भी prevent करते हैं. हाँ, वो उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम लोग वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे. ये हैबिटेट में you can see them in a garden, specially cultivated, as they look beautiful. Okay, so they love cool, damp, shady places. So you will see them always growing into cool, damp, shady, and yes, shady places. Clear. Cool, damp, shady places. They will be usually growing in the canopy of tall plants. Even they grow in a sandy soils, etc. You will also see them growing into the sandy soil. All right, this is clear. Everybody followed this much. These are simple characteristics. The Now, leaves में sporangia होता है. बताऊंगा मैं. That I will tell you. Basic characteristics you just understand. Now, when it comes to first terrestrial plants, you also can call them as a first successful terrestrial plants, है ना? First successful and terrestrial plants. Now, when I say first successful terrestrial plants, not very successful also. They are successful because they are growing on the land. It is true, but still they are not very successful because still they need water. They need water for fertilization. So remember this. These plants need water for fertilization. Therefore, we cannot say that these are the very much successful plants. Did you understand? Yes. Bolo bachcho. Okay. Now, next features. Again, you can say these are not very successful. Beyond this, we have got two more divisions of the plants. Division gymnospermic. Water, वो aquatic plants और terrestrial plants के बीच में hybrid है क्या? No, this is evolution. No, first one was completely aquatic. Then we saw growing on the bank of water bodies. Then here these are away from the water bodies, but still they need water. So you can say that these are successful, but not 100% successful. All right, now they are going away from original water bodies. So that is the thing you should know. Again, when you say vascular bundles, of course they are vascular plants. They have xylem and phloem. When you call plant as a vascular plant, if it has got a xylem and phloem, correct or not? But again, Yes, when you compare this
when you compare this with angiosperms are the most advanced plants. In angiosperms, you will find here vessels are present. They are called as xylem vessels. But here, these vessels are absent. Remember this important question. ये expected question हो सकता है आपको. Though they are vascular plants, their vascular bundles are not much advanced compared to angiosperms. Because xylem में 4 components होते हैं, हमने सुना है. Do you remember बच्चों, xylem में 4 component कौन से होते हैं? या phloem में 4 component कौन से होते हैं? पढ़ा है आपने स्कूल में? Yes, बोलो sir. जैनाब. बोलो बच्चा. कौन से 4 component होते हैं? नील, are you there? मालूम है कि नहीं? हेलो नील, are you there? नहीं सुना है? Sir, fibers, xylem fibers, tracheids, Yes, vessels, Yes. Xylem parenchyma, xylem और sclerenchyma, parenchyma cells. वेसल्स और ट्रकीड्स. तो ये जो वेसल्स होते हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में मिलेंगे, बाकी किसी ग्रुप में नहीं होते. तो अगर आप टेरिडोफाइटा बोल रहे हो, जिम्नोस्पर्म्स बोल रहे हो, उनमें भी ये नहीं होगा. तो उनका वैस्कुलर बंडल्स कम एडवांस्ड है. फ्लोएम में भी एक और चीज है, आप लोगों ने सुना होगा, ये वाला कंपेनियन सेल्स. मालूम है क्या? हाँ सर, they provide Companion nutrition to cells. the यस. तो ये भी इनमें नहीं होता है. मतलब इनका जाइलम और फ्लोएम है, पर वो अभी बन रहा है. इट इज इन इनिशियल स्टेज. सो देयरफॉर वी कैन से दैट दे लैक Sir, जाइलम उसमें वेसल्स. phloem parenchyma, phloem tube और वो ये सब होगा. sieve tubes होता है. ये सब होगा. हाँ, सिर्फ एक चीज नहीं है, और वो कौन सी चीज नहीं है? दे डू नॉट हैव कंपेनियन सेल्स. एम आई क्लियर बच्चों? and sir companion आपका cell क्वेश्चन बन सकता है. जिम्नोस्पर्म में भी नहीं है. नहीं होता है. यस. तो ये दोनों चीजें टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म्स में नहीं है, याद रखो. Okay. समझा बच्चों? क्लियर है? ऑलराइट. नाउ और एक इंटरेस्टिंग चीज इनके बारे में याद रखो. आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में सुना है क्या? यू विल सी दैट जाइलम एंड फ्लोएम इज सेपरेटेड बाय वन रिंग. ऐसा, दिस इज योर फ्लोएम, दिस इज योर जाइलम. पता है आप लोगों को अरेंजमेंट ऐसा होता है, हाँ सर. और बीच में एक ऐसे रिंग होता है. तो दिस रिंग इज कॉल्ड एज ए कैम्बियम. डू यू नो दिस बच्चों? कैम्बियम. बोलो हाँ कि ना. डू यू नो दिस और नॉट? इसी से हम लोग एज ऑफ प्लांट सुना. काउंट करते हैं. यू कैन काउंट द एज ऑफ अ प्लांट बाय दिस रिंग, कैम्बियम रिंग. तो ये इनमें कैम्बियम भी नहीं होता, याद रखो. कैम्बियम भी इज एब्सेंट. तो ये भी और एक symptom है that these are less advanced than gymnosperms and angiosperms. Did you understand this? बताओ Yes, मुझे. sir. And sir, So they do not cambium show secondary growth. cambium is present in ऐसे. gymnosperm. Yes, that is in the gymnosperms, but इनमें नहीं होता. तो इसमें ऐसे होता है जाइलम और फ्लोएम ना, हम लोगों ने सुना है. They are like a ring. तो ये रिंग है. Here is your cambium ring. अंदर के साइड में जाइलम है, बाहर के साइड में फ्लोएम है. Are you understanding? This is phloem, this is xylem. Yes sir. फ्लोएम, जाइलम, दोनों के बीच में रिंग, और यही रिंग हर साल ऐड होता जाता है. सो वन रिंग इज एडेड एवरी ईयर. तो इसकी वजह से डायमीटर बढ़ेगा. व्हाट दिस विल डू? इट विल इंक्रीज द डायमीटर, जिसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं. तो इन प्लांट्स में कैम्बियम भी नहीं है, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगा. मतलब उनका स्टेम ऐसा मोटा नहीं होगा, एकदम ऐसा छोटा छोटा होगा, जैसे ग्रेन्स का होता है, राइस का, ज्वार का, बाजरा का. आपने देखा है ना, मकई. हैव यू सीन? मोनोकॉट्स का जो स्टेम होता है ना, वैसा ही स्टेम इनका भी होगा. याद रखो ये वाली चीज. क्या बोला मैंने? दे डू नॉट हैव कैम्बियम एंड देयरफॉर दे डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ. व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी ग्रोथ बच्चों, बताओ? Sir, increase क्या in ये? diameter. डायमीटर और गर्थ. इंक्रीज इन डायमीटर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ गर्थ. तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा ऐसे. इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? बोलो. Yes और sir. इसमें एक Yes, एक्सेप्शन है, sir. आपको ऐड करना है. तो वैसे ही आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है. आइसोएट्स इज द नेम ऑफ द प्लांट, एक्सेप्ट जिसमें होगा वो है आइसोएट्स. इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, क्योंकि इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है. दिस मच इज क्लियर. एवरीबडी टेल मी. किसी को Yes, कोई sir. डाउट, किसी को कोई शक? अब आ जाओ आगे. चलो अब इसमें नाउ
लाइफ साइकिल विल बी कंप्लीटेड इन 2 जनरेशंस, हमें पता है वो। लाइफ साइकिल विल बी कंप्लीटेड इन 2 जनरेशंस। कौन से 2 जनरेशंस बताओ बच्चों, मालूम है ना कौन से 2 जनरेशंस? अरे वही सर हैप्लो हैप्लॉइड Haploid गैमेटोफाइटिक। और- Diploid यस and diploid. यस यस यस, याद आया, नाम है उसका ना कुछ। लाइफ साइकिल विल बी कंप्लीटेड इन 2 जनरेशंस, दैट इज Haplodiploidic. डिप्लॉयड, हाँ जी, हैप्लोडिप्लॉइडिक क्लास सर। sporophytic generation which will be diploid, and gametophytic Gametophyte. generation which will be haploid। ये तो आप लोगों को पता ही है, याद आया? हाँ, यस सर। हागा, एंड दैट वाज व्हाट, समथिंग स्पोरोफाइट के लिए क्या था? डेस्पो। यस, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ये दो होंगे, दे विल अल्टर विद ईच अदर। अब इनमें फर्क क्या है वो देखो, चलो। So when you compare these 2 generations, एक फर्क तो हम लोगों को यहाँ दिख ही रहा है ना, दिस इज गैमेटोफाइट विच विल बी हैप्लॉइड, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, याद रखो। बोथ दी जनरेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसके पहले वाले ये ब्रायोफाइटा में याद करो आप लोग, सर क्या था? स्पोरो नहीं गैमेटोफाइटिक डिपेंडेंट होता है। नहीं, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट था, वो अच्छा। फूड सीटा एंड कैप्सूल वाला पार्ट। सर It was इसमें nourishment। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, और ये एक यूनिक फीचर है इनका, याद रखो बच्चों। जब हम लोग बोलेंगे लाइफ साइकिल, तो इसमें याद रखना है आपको कि कोई भी किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। समझ में आया क्या? बोलो। और कौन सा वाला Yes. लाइफ साइकिल ये दिखाएंगे? हमने ऑलरेडी पढ़ा है टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में कौन सा वाला लाइफ साइकिल था? हैप्लो डिप्लॉन्टिक, याद आया? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हाँ कि ना? Yes, दोनों यस सर। दोनों फेजेस रहेंगे इसमें, हैप्लॉइड फेज भी रहेगा, डिप्लॉइड फेज भी रहेगा, इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब सो इट विल नॉट बी लाइक दैट। फाइन देन, अब आई विल टेल यू नाउ हाउ इट इज। अब ये लाइफ साइकिल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। डिड यू कॉपी डाउन दिस? टेल मी, कितना लिख लिया आप यस लोगों ने? सर। गुड। नहीं लिखा है तो उसको सर लिख लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फुर्सत में लिखो एकदम, उसको डेकोरेट करके अच्छे से करो। इरेज, बताओ मुझे। Yes. Yes, sir. ओके, so now I will show you this exactly how their alternation of generation takes place। तो स्पोरोफाइट में और गैमेटोफाइट में क्या फर्क है इनके? स्पोरोफाइट मतलब एक्चुअली प्लांट बॉडी, जो मेन बॉडी होती है वो यहाँ पे स्पोरोफाइट होगी। इसके पहले वाले फाइलम में या ग्रुप में हमने, आई मीन डिवीजन में हमने पढ़ा था, जो मेन बॉडी थी वो गैमेटोफाइट थी, जो प्लांट के जैसे दिखती थी, बराबर ना? स्पोरोफाइट में फूड सीटा था और कैप्सूल था। इधर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? अब आप देखोगे कि इसमें स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट मतलब कौन? जो प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड होगी, जिसमें रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है। ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, also vascular bundles। याद आया बच्चों? क्या क्या होगा इसके अंदर? रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, वैस्कुलर बंडल्स हैं। अब इसमें भी जो इसके लीव्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इट हैज गॉट 2 टाइप्स ऑफ लीव्स बच्चों। इनमें 2 टाइप के लीव्स होते हैं। एक टाइप होता है जो नॉर्मल लीव्स होते हैं, ऑर्डिनरी लीव्स होते हैं, और दूसरा होता है कुछ स्पेशल लीव्स जिनको बोलते हैं स्पोरोफिल, जो रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे। तो क्या होगा? अभी यहाँ पे 2 टाइप के लीव्स होते हैं इनमें। एक होते हैं जो स्पोर्स तैयार करेंगे, वो वाले लीव्स। दूसरे होते हैं जो स्पोर्स तैयार नहीं करते हैं, वो नॉर्मल लीव, जिनको बोलते हैं ट्रोपोफिल। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग समवेयर एल्स। ये नॉर्मल लीव को बोलते हैं ट्रोपोफिल्स। डिड यू गेट द डिफरेंस बच्चों? बताओ, ठीक है?
जैसे अभी ये आपका प्लांट ग्रो कर रहा है, इस प्लांट में इधर रूट्स, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर या स्टेम है, और ये रहे लीव्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? दीज आर द लीव्स। अब इस लीव्स में दो टाइप के लीव्स होते हैं, मैंने बोला। एक होते हैं जो स्पोर्स तैयार कर सकते हैं, दूसरे होते हैं जो स्पोर्स तैयार नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? बोलो। तो सर जो सॉरी स्पोर सर, मेरे तैयार, को ट्रोपोफिल क्या है सुना नहीं दिया। ये लीव्स में दो टाइप, समझ लो। ये वाला स्पोर्स तैयार नहीं कर रहा, अच्छा, तो वो ये ट्रोपोफिल वाला है, तैयार ठीक है। कर रहा है। ओके। हाँ, जो तैयार करेगा स्पोर्स वो होता है स्पोरोफिल। अब समझा? The leaves which will यस सर, produce the यस। spores will be called as a sporophylls. अब इसके भी, लीफ के भी दो साइड्स होंगे, दो सरफेसेस होंगे, मतलब एक अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस। अब ये लीफ है, दिस हैज गॉट नाउ टू सरफेसेस, वन विल बी कॉल्ड एज ए अपर सरफेस, अदर वन विल बी कॉल्ड एज ए लोअर सरफेस, या हम लोग उसको डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको एबैक्सियल सरफेस एंड एडैक्सियल सरफेस भी बोलते हैं। क्या होता है ये एबैक्सियल एंड एडैक्सियल? एडैक्सियल मतलब डॉर्सल, डी से डॉर्सल याद रखो। एबैक्सियल मतलब इसका नीचे वाला साइड, ये साइड नीचे वाला, वहां पे क्या दिखेगा अपने को? ऐसे ब्राउन स्पॉट्स दिखते हैं मार्जिन पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? टेल मी। यस किसके लीव्स में बोल रहा हूं मैं? स्पोरोफिल वाले लीव्स की बात चल रही, ना कि ट्रोपोफिल वाले लीव्स। जो स्पोरोफिल वाले लीव्स है, इनके एबैक्सियल सरफेस पे, एबैक्सियल मतलब कौन सा? लोअर सरफेस। जो डॉर्सल या ऊपर वाला सरफेस है उसको एडैक्सियल बोलते हैं। तो अल्फाबेट देखो, डी फॉर डॉर्सल, बी फॉर वेंट्रल। तो ये वाले जो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, एक्चुअली इनको बोलते हैं सोराय। सिंगुलर नंबर सोरस, प्लूरल नंबर सोराय। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? और इसके अंदर क्या होता है? इस सोराय के अंदर आपको दिखेगा ऐसे बैडमिंटन रैकेट के जैसा स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। डिड यू गेट मी? बोलो बच्चों, कुछ यस पल्ले सर। पड़ा क्या? ऐसे बैडमिंटन रैकेट के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। और तो ये स्पोरोफिल के अंदर क्या होगा? मैंने बोला स्पोरेंजियम होगा। अब ये स्पोरेंजिया, प्लूरल नंबर स्पोरेंजिया, बैडमिंटन रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर अभी कुछ सेल्स होंगे, देयर विल बी सम सेल्स हियर, और ये सेल्स भी डिप्लॉयड होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पोर मदर सेल्स। क्या बोलेंगे हम लोग इनको? स्पोर मदर सेल्स, which will be again deployed। इतना समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे। स्पोर यस मदर सर। सेल्स होंगे। अब ये स्पोर मदर सेल्स डिवाइड होंगे मियोसिस से। इनमें होगा डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। मियोसिस वाला डिवीजन। और मियोसिस में क्या होता है? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड डिप्लॉयड बनता है, पता है हैप्लॉयड ना? बनता है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे अभी एक सेल से चार सेल्स बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बताओ मुझे बच्चों। और अब बन जाएंगे स्पोर्स। नाउ इट विल प्रोड्यूस स्पोर्स। इज दिस क्लियर टू यू? बताओ 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 जल्दी जल्दी। यस सर। ठीक है। अब ये कुछ प्लांट्स में एक दूसरे के जैसे दिखने वाले स्पोर्स बनते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे होमोस्पोरस प्लांट। होमोस्पोरस। Yes, those spores which are produced here, if they look alike, then that plant will be called as a homosporous. So majority of the pteridophytes they produce similar kind of spores. ठीक है। कुछ प्लांट्स है जो अलग अलग साइज के स्पोर्स बनाते हैं, अलग अलग दिखने वाले स्पोर्स बनाते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? बताओ बच्चों, हेटेरोस्पोरस। उनको क्या बोले? हेटेरोस्पोरस। वेरी इजी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? बताओ मुझे। यस सर। स्पोर्स, दो टाइप के यस स्पोर्स बनते हैं, identical spores and unidentical spores. If identical spores are produced, we will call it as a homosporous. If unidentical spores are produced, we will call it as heterosporous. So majority of the plants, they produce similar kinds of spores. Very few plants are there जिसके नाम हम लोग पढ़ेंगे of course, जैसे कि सेलाजिनेला नाम है, या फिर सैल्विया, सैल्विया आई मीन सैल्विनिया नाम है, एजोला नाम एक फर्न का है। वो अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे।
ठीक है, इतना समझ में आया क्या? यस हाँ सर। ओके, तो उनको हम लोग हेटेरोस्पोरस बोलेंगे, बराबर। अब आ जाओ आगे। अब ये स्पोर जर्मिनेट होंगे, ऑब्वियसली these spores will be germinated। और क्या बनाएंगे जर्मिनेट होके? गैमेटोफाइट Embryo। बनाएंगे। स्पोरोफाइट, हाँ नहीं, इससे गैमेटोफाइट बनेगा। अच्छा सॉरी क्या सॉरी। बनेगा? गैमेटोफाइट। यस। एक, हाँ। सो अब इससे क्या होगा? गैमेटोफाइट। ये स्पोर्स, हाँ जी, ये स्पोर्स अभी जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होके बनाएंगे गैमेटोफाइट, बराबर है। स्पोर्स जर्मिनेट होके बनाएंगे गैमेटोफाइट। यहां से आगे अभी अपना हैप्लॉइड जनरेशन शुरू हो गया बच्चों। अब ये गैमेटोफाइट का शेप बहुत बार हार्ट शेप के जैसा दिखता है। In many cases, this gametophyte looks like heart. I will show you one best animation I have got with me. आप लोग पहले ये समझ लो, ये देखो। और इसमें भी ऐसे राइजोइड्स वगैरह रहेंगे फॉर सपोर्ट अटैचमेंट। एंड इसका जो उल्टा साइड है, ऑपोजिट साइड, मतलब वेंट्रल जहाँ पे ये चिपका हुआ है, उधर ही इसके सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे। और वो सेक्स ऑर्गन्स क्या रहेंगे? सेम सेक्स ऑर्गन जो हम लोगों ने ब्रायोफाइटा में पढ़े थे या एल्गे में पढ़े थे। याद करो क्या बोलते हैं उनको? व्हाट डू यू कॉल देम एज? बोलो 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 बच्चों। ये वाले जो स्पोर्स हैं, these spores, they got germinated and they produced gametophyte। gametophyte मेजोरिटी केसेस में बाइसेक्सुअल होता है, बहुत कम केसेस में यूनिसेक्सुअल होता है। मतलब इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स है। हम लोग क्या बोलते हैं इन सेक्स ऑर्गन्स को बच्चों? मेल सेक्स ऑर्गन एंड अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। याद है क्या? यू ऑलरेडी हर्ड दीज नेम्स, पिछले वाले कॉमन 2 ओवम। ग्रुप्स में पढ़ता। अरे एंथेरेडिया याद आया फॉर मेल एंड आर्केगोनिया फॉर फीमेल। डू यू रिमेम्बर दिस बच्चों? बोलो बोलो बोलो, याद आया क्या? हाँ सर। एंथेरेडिया एंड आर्केगोनिया। एंथेरेडिया मतलब क्या? मेल सेक्स ऑर्गन। आर्केगोनिया मतलब क्या? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये बाइसेक्सुअल होता है, बट कुछ केसेस में यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। मतलब मेल गैमेटोफाइट अलग है, फीमेल गैमेटोफाइट अलग है। समझा इतना? अब क्या होगा? इसके अंदर स्पर्म्स तैयार होंगे। सर तो नाम एंथेरो बताओ। मेल है ना? हाँ, एंथेरो इज फॉर मेल। आर्ची, आर्ची यू नो ना, वो मूवी है ना, मराठी मूवी। कौन सी हाँ वाली? सर। आर्ची वाली, आर्ची। हाँ हाँ, हाँ कौन सर। सा हाँ वो सर। गाना, फेमस सॉन्ग, झिंगाट। तो वो आर्ची है। सो लाइक दैट यू कैन रिमेम्बर। तो आर्कीगोनिया, एंथेरेडिया यहाँ पर है, इसके अंदर है। अब ये क्या तैयार करेगा? दिस विल प्रोड्यूस स्पर्म्स, दिस विल प्रोड्यूस एग। तो यू नो व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? स्पर्म्स के बदले हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चों? याद करो। एंथेरेडिया विल प्रोड्यूस एंथेरोजोइड्स। एंथेरोस्पोर। एंथेरोजोइड्स, स्पर्म्स, एंथेरोजोइड्स, जो कि स्पर्म्स होते हैं। और इनका स्पेशलिटी है, ये एंथेरोजोइड्स का जो शेप होता है। अब यहाँ पे बाइफ्लैजेलेटेड नहीं होगा। हम लोगों ने इसके पहले वाले में पढ़ा था बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, याद आया कि नहीं? डू यू रिमेम्बर? यस सर। बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे मल्टीफ्लैजेलेटेड होंगे। सो दोज विल बी स्पाइरल इन शेप। ये जो एंथेरोजोइड्स है, ये स्प्रिंग जैसे दिखेंगे। वहां पे वो स्प्रिंग जैसे नहीं थे, तो ये ऐसे रहेंगे और इनमें बहुत सारे फ्लैजेले रहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? मल्टीफ्लैजेलेटेड एंड स्पाइरल इन शेप इन मेजोरिटी केसेस। कुछ एक्सेप्शन है इसमें, कॉमा लाइक भी दिख सकते हैं, जैसे एक लाइकोपोडियम है, उसमें ये बाइफ्लैजेलेटेड होंगे और कॉमा लाइक होंगे। आई विल गिव यू दिस इन थियरी। अभी यहाँ पे फिलहाल आप ये याद रख लो। कैसे स्पर्म्स बनेंगे? बोलो। स्पाइरल इन शेप, मल्टीफ्लैजेलेटेड, और यहाँ पे बनेगा एग। सो दैट एग विल बी एज यूजुअल, यू नो, लार्ज इन साइज। डू यू रिमेम्बर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड तीसरा टाइप क्या था? अनाइसो, क्या होता है? आइसो एंड और हाँ हाँ बराबर है, बोलो बोलो बच्चों, भूल गए क्या? उर्वशी, जैनब, याद करो। व्हाट वाज दैट? अनाइसो, आइसो और
What is this? हम लोग कौन? oogamous. Yes. What do you mean by oogamous? oogamous का मतलब होता है ovum is large in size, non-motile. वो बोलता है कि ovum बोलता है कि मैं थोड़ा भाव खाता है, मैं इधर ही रुकूंगी, मतलब वो फीमेल है तो स्पर्म को आने दो, यहाँ पे फर्टिलाइज होने दो, है ना, अपने तो बहुत नखरे रहेंगे, तो यहाँ पे वो oogammy होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही टाइप है बच्चों। कौन सा वाला टाइप है? oogamous। मीनिंग क्या है oogamous का? Female gamete will be large in size, male gamete will be small in size, female gamete will be non-motile, male gamete will be motile. Did you understand this? Tell me बच्चों। Yes, बोलो बोलो sir. बोलो फटाफट। ठीक है, अब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, ऑब्वियसली इसके बाद में क्या होगा? These two will fuse with each other, और इनका फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? इनका फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। Yes or no? Their fusion will result into production of zygote. अब यहाँ zygote haploid होगा कि diploid होगा, बताओ मुझे। Diploid. Yes. So it will be diploid. तो ये प्रोसेस को हम लोग अभी बोलेंगे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, और इस फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होगा अभी जाइगोट। ठीक है, अभी इस फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, आई मीन मेल गैमेट मूव कर सकता है, इसलिए इसको एक नाम याद रख लो आप लोग, ज़ूडियोगैमी। ज़ूइडियोगैमी। ज़ूइडियोगैमी का मतलब होता है मेल गैमेट इज मोटाइल। ज़ूइडियोगैमी याद रहेगा मीनिंग इसका। ज़ूइडियोगैमी मींस मेल गैमेट इज मोटाइल, फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। मतलब इसमें ये फ्लैजेले होते हैं सो दैट दे कैन स्विम, और ये पानी में होगा फर्टिलाइजेशन। वाटर इज नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। बन गया जाइगोट। दिस विल बी नाउ डिप्लॉयड स्टेज। तो यहां से यहां तक देखो अभी बच्चों, बिफोर दिस ये पूरा आप लोगों को हैप्लॉइड दिखाई दे रहा है क्या? बोलो 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 बोलो, हाँ, इज इट sir. हैप्लॉइड? तो ये कौन सा जनरेशन हो गया? गैमेटोफाइटिक जनरेशन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कम ऑन किड्स, टेल मी। हेलो, Yes, sir. आर यू कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल? ये है बड़ा एग, नॉन मोटाइल एग। और अब आ जाओ, जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट डिवाइड होगा, रीडिवाइड होगा, Embryo. और उससे बनेगा एम्ब्रियो। एग्जैक्टली, दिस विल अंडरगो डिवीजन एंड विल फॉर्म एम्ब्रियो, जो कहाँ पे बन रहा है? नॉट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट के ऊपर नहीं अटैच है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। तो ये एम्ब्रियो है विच विल बी डिप्लॉयड इंडिपेंडेंट, और यही एम्ब्रियो फिर और डिवाइड रीडिवाइड होगा और बनाएगा पूरा प्लांट बॉडी, जो बनेगा आपका स्पोरोफाइट। हाउ इज दैट? बोलो बच्चों। और ये पूरा स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, डिप्लॉयड है। तो ये देखो अभी दो अलग अलग चीजें आपको यहाँ दिख रही है। टेल मी हाउ इज दैट? एनी डाउट एनीबॉडी? No, sir. सिंपल है ना? बोलो बच्चों। ये स्पोरोफाइट मतलब क्या? ये आपका पूरा प्लांट बॉडी, बराबर ना, जिसमें क्या क्या होगा? इट विल हैव दिस रूट, इट विल हैव स्टेम, इट विल हैव लीव्स, और लीव्स में भी वो बोला मैंने क्या, दो टाइप के लीव्स, जिसमें से नॉर्मल लीव्स भी होंगे और स्पेशल लीव्स भी होंगे। जो स्पेशल लीव्स है जिनके ऊपर स्पोर्स तैयार होंगे, वो ये है आपके सामने। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, कोई शक? नहीं, sir. पक्का? एवरीबडी sir. अंडरस्टूड दिस? उपमन्यु, टेल मी बच्चा, Yes, sir. कॉन्फिडेंट अबाउट दिस लाइफ साइकिल? Yes, sir. ऑल राइट, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अब जनरल फीचर्स पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे पास इसका एक एनिमेशन भी है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वाईफाई बंद है, तो वो मुझे वो स्क्रीन शेयर करने को नहीं हो रहा है। ऐसे दिखाओ क्या जुगाड़ में आप लोगों को? पूरा चीज अभी जो मैंने बोला वो एक 5 मिनट का एनिमेटेड चीज है। डू यू वांना सी दैट? बोलो Yes, बच्चों। sir. पर मैं स्क्रीन शेयर कर नहीं पा रहा हूं, तो मैं Sir, आप आपको इसे भेज दो मोबाइल ना. होल्ड करके दिखा, वो भेज दूंगा मैं, पर अभी
I wanted to show you, know that. Hmm. Hmm. चलो रुको. क्योंकि पता नहीं मेरे लैपटॉप में ये सपोर्ट नहीं करता है जूम बहुत बार. So that irritates, that frustrates me. पूरा जो आपका एनसीईआरटी है ना वो एक 5 मिनट के वीडियो में समेटा गया है. So I will try to show you that. पर थोड़ा अलग वे से. रुको हो रहा है शायद से कनेक्ट. हुआ तो अच्छा ही है. I will be able to share the screen. चलो आप लोग ऐसे ही देख लो. Can you all see the screen बच्चों? ये देखो. These are the plants which belong to the category, right? और रुको हो रहा है शायद से आ रहा है तो I will share directly. क्या पासवर्ड है? 190721 बराबर. चलो तब तक वही अपना वाला जुगाड़ से देख लो. टीलाई कनेक्ट. देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. वॉच द एग्जांपल्स. लाइक दिस इज द वैस्कुलर बंडल एंड ये वाला फर्न है जो आप लोगों को दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड एज अ फर्न प्लांट. नेफ्रोलेपिस. ओके इट हैज गॉट अ रूट्स, अरे stem, अरे leaves. दिखता Can you है see ये this? आसपास में. हाँ. ब्यूटीफुल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स. आई सेड ऑलरेडी. देखो फर्न, सेलाजिनेला. कुछ में लीव छोटे होते हैं, कुछ में लीव्स बड़े होते हैं. तो ये उसका इम्पोर्टेंस भी है. ऑर्नामेंटल यूजेस में सॉइल सर बाइंडर्स है, ऑर्नामेंटल में मेडिसिनल कौन सा है. आता है? वही फर्न प्लांट. फर्न ये इसके 4 ग्रुप्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है. सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, पेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा. ये देखो ये नहीं हुआ बीच में, देखा ना. आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस. चलो ये देखो अभी ये वाला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शुरू हुआ. वापस से दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैंने आप लोगों ने मिस किया. तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से शुरू. ये देखो 4 ग्रुप्स में पहला ये तो आपको मैं बताऊंगा. यू डोंट वरी अबाउट इट. एग्जांपल्स भी. सी दिस लाइफ साइकिल में क्या हुआ. लीफ के अंदर वो डंडी था. दैट वाज योर बैडमिंटन रैकेट लाइक स्ट्रक्चर. उसमें स्पोर्स तैयार हुआ. उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं ना. ये बैडमिंटन रैकेट. ये देखो सोरा है जो ब्राउन कलर के दिखते हैं और ये लीफ है जिसके ऊपर सोराई प्रेजेंट है. Then sometimes it might look like a cone. तो एक्विसेटम में ये लीव्स ऐसे कोन के जैसे दिखते हैं. आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो. यू जस्ट वॉच इट. मुझे सिर्फ लाइफ साइकिल पसंद आया इसका तो मुझे वो दिखा दो. हॉस्टल है ना? हाँ बताता हूँ.
See this spores they released किडनी शेप के जैसे स्पोर्स है तो होमोस्पोरस है, फिर वो जर्मिनेट होके बनाया यंग गैमेटोफाइट, फिर उससे गैमेटोफाइट देखो हार्ट शेप का मैंने बोला था, उसको प्रोथैलस बोलते हैं। इस प्रोथैलस में देखो राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, रूट्स है इसमें, और अभी दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे। कौन से दोनों सेक्स ऑर्गन्स? एंथ्रेडियम एंड आर्केगोनियम। दिख रहा है बच्चों? बेस की तरफ यूजुअली एंथ्रेडियम होता है, एपेक्स की तरफ यूजुअली आर्केगोनियम होता है। एंथ्रेडियम में अभी स्पर्म्स या एंथ्रोजोइड्स तैयार होंगे, आर्केगोनियम में एग तैयार होगा। बराबर है बच्चों? करेक्ट नो? और अब फर्टिलाइजेशन के लिए देखो ये स्पर्म्स एंटर हो रहे हैं एग की तरफ, पानी में होगा ये फर्टिलाइजेशन, then it will fuse and will form zygote. This zygote will now be divided inside that ovule, इसलिए इसको एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ये भी हमने डिस्कस करना है। बन गया इससे गैमेटोफाइट, यंग गैमेटोफाइट, एंड देन मैच्योर गैमेटोफाइट्स, मतलब वो फर्टिलाइजेशन होगा स्पोरोफाइट बनेगी। यस, नाउ यू कैन सी दिस इज यंग स्पोरोफाइट एंड फाइनली मैच्योर स्पोरोफाइट। अब बताओ मुझे कैसा लगा लाइफ साइकिल ये? हाउ इज दैट? बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो। ये देखो अभी होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, मेजोरिटी ऑफ देम दे आर होमोस्पोरस। देखो एक ही शेप के जैसे दिख रहे हैं ना स्पोर्स, किडनी के जैसे, और यहाँ देखो ये हेटेरोस्पोरस, मतलब अलग अलग टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं। इसमें दो होते हैं, मेगास्पोर जो बड़े साइज में होंगे, माइक्रोस्पोर जो छोटे साइज में होंगे। ये लीफ के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। तो जो मेगास्पोर्स होते हैं उससे बनता है फीमेल गैमेटोफाइट और उसमें होगा एग, और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उससे बनेगा स्पर्म्स, दैट इज मेल गैमेट, ये बनाएगा आपका एंथ्रेजोइड्स। यस, एंथ्रेजोइड से स्पर्म्स ऑफ कोर्स, दैट यू नो। और फिर वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा। सेम लाइफ साइकिल विल बी कंटिन्यूड। डिड यू अंडरस्टैंड बच्चों? Yes, sir. बोलो बोलो गर्ल्स, व्हाट अबाउट यू पीपल? Yes, sir. यू वेर कॉन्फिडेंट विद दिस? समझ में आया कैसे होता है लाइफ साइकिल? तो मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, आप लोग फिक्र मत करो। एक्चुअली ये मैंने डाउनलोड करके रखा था आप लोगों के लिए, बट वो बराबर एग्जैक्ट मोमेंट पे ये मेरा इंटरनेट धोखा दे देता है, तो देन आई हैव टू शिफ्ट टू मोबाइल डेटा एंड ऑल। एनीवेज, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। किसी को कुछ पूछना है क्या? एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? बोलो बच्चों, No, sir. किसी को कुछ पूछना है? नो ना? तो लाइफ साइकिल कैसे होता है वो समझा, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। कौन से वाले टर्म्स? ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या याद रखना है आपको? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, ये आप लोगों को पता है। फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये दोनों भी, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इज इट क्लियर? oogamous, ये भी समझ में आया। मल्टीफ्लैजेलेटेड स्पाइरल शेप्ड स्पर्म्स और एंड्रेजोइड, ये भी याद रहेगा। एक्सेप्शन है इसमें, जिसमें बाइफ्लैजेलेटेड होता है, उसका नाम है लाइकोपोडियम। तो अब आ जाओ जनरल फीचर्स में वापस से, विल टॉक अबाउट इट। So are you ready? इरेज करूं ये वाला पार्ट में? बताओ बच्चों, shall I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अब आ जाओ पार्ट्स ऑफ दैट स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सो ऑब्वियसली स्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉयड जनरेशन व्हिच इज डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइडेड है वो? इट इज डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, आल्सो इट हैज गॉट जाइलम एंड फ्लोएम टू। बराबर ना बच्चों? तो ये वैस्कुलर भी होता है। तो अब इसके रूट्स कैसे होते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स होंगे। So when you talk about the sporophyte, sporophyte is the main plant body. Diploid होता है main plant body. Do you understand this? Do you agree with me? क्या होता है ये? मेन प्लांट बॉडी होता है जो डिप्लॉयड होगा, इसमें रूट्स होंगे, स्टेम होगा, लीव्स होगा, और
और अब इसके लीव्स के बारे में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि स्टेम में कुछ है नहीं ज्यादा चीज, या फिर रूट्स में भी कुछ ज्यादा चीजें है नहीं पढ़ने जैसी. यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट रूट्स. व्हाट यू नीड टू लर्न हियर इज अबाउट लीव्स. बच्चों क्या याद है आपको लीव्स में? चलो हो गया फाइनली शुरू. दिखाओ वापस आप लोगों को मैं. अब आ गया मेरा वाईफाई वाला. यू वांट टू सी दैट अगेन? बताओ मुझे फटाफट. क्विक रिकैप बोलो बच्चों. यस सर. ठीक है चलो जब तक है फटाक से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. कैन यू हियर साउंड? नो सर. किधर गया? इधर होता है शेयर साउंड वाला, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? सर वो स्क्रीन शेयर नहीं इधर सेटिंग्स में भी होता है रे. सर यू आर अनम्यूट. गया. आई लॉस्ट इट अगेन. लीव इट. छोड़ दो बच्चों. देयर इज नो नीड टू प्ले विद दैट. आई विल फॉरवर्ड यू. यू कैन वॉच देयर. ठीक है. यस. हाँ बच्चों चलो आगे बढ़े. शैल वी प्रोसीड? तो लीव्स की बात कर रहा था मैं. व्हाट अबाउट लीव्स? यू कैन रिमेंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स एज ऑलरेडी डिस्कस्ड. कौन से दो लीव्स होते हैं? दैट इज स्मॉल लीव्स एंड लार्ज लीव्स. स्मॉल लीव्स, तो जो स्मॉल लीव्स होते हैं उनका स्टेम बड़ा होता है. सो दे हैव गॉट अ लार्ज स्टेम. ओके. तो ऐसे लीव्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल के लिए हम लोग बोलते हैं माइक्रो. तो माइक्रोफिल. सच लीव्स आर कॉल्ड एज अ माइक्रोफिल. इसके ऑपोजिट क्या होगा? देयर विल बी लार्ज लीव्स जिनमें स्टेम छोटा होगा विद अ स्मॉल स्टेम. तो ऐसे लीव्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? मैक्रोफिल. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हु विल शो दिस काइंड ऑफ लीव्स? मैक्रो एंड अ माइक्रो. तो जो माइक्रो लीव्स होते हैं वो सेलाजिनेला नाम के प्लांट में आपको दिखेंगे. माइक्रो. आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम है देखो. सेलाजिनेला जिसको हनुमान जी ने वो जो पहाड़ उठा के लाया था, क्या नाम था उसका? कौन सा प्लांट ढूंढ रहे थे वो हनुमान जी? डू यू रिमेम्बर दैट बच्चों? मालूम है क्या? बोलो बोलो बोलो. कुछ बोलते हैं ना उसको. नहीं पता.
विच प्लांट ही वाज सर्चिंग फॉर, संजीवनी बूटी, तो यही है वो संजीवनी बूटी, याद रखो। सेलाजिनेला को ही बोलते हैं संजीवनी। We'll learn some more common names for others. Now you will see this one. Large size के जो leaves होते हैं वो वाले हम लोगों को मिलेंगे fern plant में। So fern plant will have large सर आप म्यूट पे हो। Yes बच्चों, I'm so sorry for the interruption. There was an actually urgent call, so I had to receive that. ठीक है, ये समझ में आया। दो टाइप के लीव्स होते हैं, स्मॉल लीव्स विद लार्ज स्टेम और लार्ज लीव्स विद स्मॉल स्टेम। किसमें मिलेगा वो भी आप लोगों को याद रखना है। आवाज आ रही है मेरी? बोलो बच्चों, कैन यू हियर मी? Yes, sir. उपमन्यु, ओके चलो आ जाओ, आगे बढ़ो अभी। नाउ यू कैन से, इसमें भी मैंने बोला कि कुछ स्पेशल लीव्स होते हैं, यही मॉडिफाई हो जाते हैं और उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ माइक्रो या मैक्रो नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल देम एज स्पोरोफिल। किसको बोलेंगे? दोज लीव्स विच कंटेन क्या, और विच प्रोड्यूस स्पोर्स, leaves which produce spores, they will be called as sporophylls. Am I clear बच्चों? जो क्या तैयार करेंगे, स्पोर्स तैयार करेंगे, वो स्पोरोफिल। और जो नहीं तैयार करेंगे उनको क्या बोलते हैं, बोला था मैंने, याद करो, बोलो बोलो बोलो। ट्रोपोफिल। लीव्स which do not produce spores, जो स्पोर्स तैयार नहीं करते उनको हम लोग ट्रोपोफिल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमने पढ़ा था कि जो स्पोर्स होते हैं वो कभी कभी एक जैसे दिखते हैं, कुछ प्लांट्स में एक जैसे नहीं दिखते हैं। तो जिनमें ये स्पोर्स, यस बच्चों ये देखो, अभी स्पोर्स में हमने क्या पढ़ा था, कुछ प्लांट्स है जिनमें सिमिलर शेप वाले स्पोर्स तैयार होते हैं, कुछ में होते हैं अलग अलग शेप वाले स्पोर्स तैयार होते हैं, राइट। तो जिनमें सिमिलर तैयार होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे होमोस्पोरस, जिनमें अलग अलग तैयार होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस। एम आई क्लियर विद दिस? बताओ मुझे फटाफट। तो एग्जांपल्स याद Yes, रखो sir. अभी, होमोस्पोरस कौन है? होमोस्पोरस के एग्जांपल्स, मोस्ट ऑफ देम, मेजोरिटी ऑफ देम होमोस्पोरस होते हैं। फिर भी कुछ नाम आप लोगों को मैं दे रहा हूं, यू कैन रिमेंबर सम नेम्स, जैसे पी क्यूब एंड एडीई। पी क्यूब, एडीई, ये पहले अल्फाबेट से प्लांट्स के नाम के। पी क्यूब मतलब पी से शुरू होने वाले तीन नाम है। अब कौन से वो नाम है, यहाँ देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी वो इमेजेस हैं। नाम है इनके सीलोटम, पी से शुरू हो रहा है सिलोटम। उसके बाद में आएगा टेरिडियम, पी से शुरू हो रहा है टेरिडियम। फिर आ जाता है आपका टेरिस, इसको ही फर्न बोलते हैं, जो मैंने लाइफ साइकिल देखा है, टेरिस। ये हो गया पी, पी क्यूब, समझ में आया। अब ए बी सी डी ई में बी और सी गायब है, तो ए डी ई,
तो बीच के दो गायब है अल्फाबेट्स, तो ए से होता है एडियंटम, एडियंटम, दिस इज योर ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, और ई से होता है एक्विसेटम। समझ में आया बच्चों क्या क्या नाम लिखा है? पी क्यूब एडीई, पी क्यूब मतलब सिलोटम टेरिडियम टेरिस, ए क्यूब आई मीन एडीई में एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, एक्विसेटम, these are the names which you should remember बच्चों। ये होमोस्पोरस के, हेटेरोस्पोरस बहुत कम में मिलता है, जैसे कि वो सेलाजिनेला याद आया आपको, साल्विनिया याद आया, एजोला, तो एग्जांपल है इसका सेलाजिनेला, देन साल्विनिया, देन अनदर वन यू कैन रिमेंबर एजोला। एजोला एक एक्वाटिक फर्न है जिसके अंदर एनाबेना नाम का एक ये ब्लू ग्रीन अलगे रहता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। बोलो बच्चों, कम ऑन टेल मी। Yes, sir. ठीक है, अब कभी कभी ये जो लीव्स होते हैं एकदम ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और वो जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो डायग्राम में आप लोगों ने देखा था। समटाइम्स these leaves they are compactly arranged and then such a structure is called as compactly arranged। जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रोबिलस, या यू कैन कॉल इट एज अ कोन, उसको स्ट्रोबिलस बोलते हैं या फिर कोन। जो एक्विसिटम का डायग्राम आपने देखा था उसमें ये लीव्स ऐसे एकदम कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और वो ऐसे कोन के जैसे दिखते हैं। सो दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर बच्चों, उसको स्ट्रोबिलस सिंगुलर, स्ट्रोबिले प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? बहुत सारी चीजें ये लीव्स के आजू बाजू में ही घूम रही है, नहीं क्या? बोलो। अब इसमें भी हमने पढ़ा था जो हेटेरोस्पोरस है, इस हेटेरोस्पोरस में दो टाइप के स्पोर्स होते हैं। दैट आल्सो आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर। हेटेरोस्पोर्स में दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, एक होते हैं छोटे साइज में, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? जो छोटे साइज में है वो होंगे माइक्रोस्पोर्स, जो बड़े साइज में होंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग? मेगास्पोर्स। एस और नो? माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, देयर विल बी टू। तो जो माइक्रोस्पोर्स है उनसे क्या बनेगा जर्मिनेट होके? दोज विच आर माइक्रोस्पोर्स दे विल जर्मिनेट, और मेल छोटा, मेल को कम यहाँ पे अहमियत ही है। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोर्स है वो जर्मिनेट होके बनाएंगे, जर्मिनेट्स एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे? दैट इज मेल गैमेटोफाइट। अब ये अलग अलग प्लांट्स बनेंगे, देखो मेल गैमेटोफाइट। हेटेरोस्पोरस इसमें है ना, सेलाजिनेला में है, साल्विनिया में, एजोला में, तो यहाँ पे इनका मेल गैमेटोफाइट अलग होता है, फीमेल गैमेटोफाइट अलग होता है। पर ये जो बाकी वाले हम लोगों ने देखे इनमें बाइसेक्सुअल होता है गैमेटोफाइट। यू गेटिंग द डिफरेंस बच्चों? वो जो हार्ट शेप मैंने दिखाया था वो बाइसेक्सुअल किस में रहेगा? इनमें रहेगा। पर अगर हेटेरोस्पोरस की बात करोगे तो उसमें मेल गैमेटोफाइट अलग होता है जो माइक्रोस्पोर से बनता है। मेगास्पोर जर्मिनेट होंगे तो क्या बनेगा? मेगास्पोर जर्मिनेट्स एंड फॉर्म और एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे? उसका उल्टा, फीमेल गैमेटोफाइट, जो क्या तैयार करेगा? मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रेजोइड्स बनते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट में एग बनेगा। Did you understand this or not? Tell me बच्चों, come on, tell me you understood this or not? बोलो, समझा कि नहीं समझा? बोलो 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 फटाफट। Yes, श्री श्रीकांत, व्हाट अबाउट यू? कुछ पल्ले पड़ा क्या? श्रीकांत, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? हाँ, उर्वशी, यू ओके विद दिस? कंफर्टेबल? उर्वशी, समझ में आया? यू आर क्लियर विद दिस? Yes, sir. पक्का? श्योर?
Shall we proceed now? Yes. Shall we proceed now? Leaves are only here, which are held around which this entire story is rotating, isn't it? So small leaves, large leaves, then normal leaves, reproductive leaves. Again, in these leaves, they will have spores. Again, in spores, they will be similar, they will be dissimilar. Again, in similar, we have these examples, and these will be bisexual gametophyte. When these spores will germinate, they will produce bisexual gametophyte. That hard shape, what we spoke about. Then heterospores will produce different shapes of the spores. They will be of small size or a large size. If they are small size, you call it as a microspores. If they are of large size, they are called as a megaspores. When microspores will germinate, they will produce male gametophyte. When megaspores will germinate, they will produce female gametophyte. Am I clear? And then here there will be same fertilization in the water, like we saw that in animation 2. Am I clear, bacha log? Any doubt about this? Anybody? Now in your textbook, they have given there are 4 classes of the same. Shall I erase this? Bolo bachcho, shall I erase this? Yes. Boys लोग हो गया आपका? करो erase इसको. Boys, tell me. Shrikant, Neil, Yes, are you sir. there? उपमन्यु बोलो. करो erase. ये समझ में आया टॉपिक? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या था? Yes, sir. चलो आगे बढ़ो अभी. अब आएगा अपना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एंड देयर आर 4 क्लासेस. ये वाला जितना भी टेरिडोफाइट्स है उनको 4 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है. कौन से 4 क्लासेस हैं? फटाक से हम पढ़ लेते हैं उनके नाम. व्हाट आर दोज? सिर्फ उसका क्लास और एग्जांपल ही पढ़ना है. देयर आर 4 क्लासेस एंड इट इज मेंशन देयर इन योर एनसीईआरटी. लास्ट लाइन देख लो आपका एनसीईआरटी का तो पता चलेगा. तो सबसे पहला क्लास है सीलोप्सिडा. नंबर 1 is this Coelopsida. Opsida is a suffix you have studied in the first chapter. Remember? तो ये Coelopsida का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये सबसे एंशिएंट ग्रुप है ये टेरिडोफाइट्स का, जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता. सिर्फ एक ही है जो अभी एग्जिस्टिंग है, जिसका नाम है सीलोटम. याद रखो क्या बोला मैंने इसका. ये मोस्ट प्रिमिटिव. ये सब चीजें याद रखनी नहीं, आपके एनसीईआरटी में है भी नहीं. मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है. अब एक ही है ओनली एग्जिस्टिंग स्पीसीज है जिसका नाम है सीलोटम. देखो इसीलिए सीलोप्सिडा, सीलोटम, जिसको हम लोग लिविंग फॉसिल बोलते हैं. लिविंग फॉसिल्स आर दोज हु आर नॉट चेंज्ड सिंस देयर ओरिजिन. जब से वो बने तब से ऐसे दिखते हैं. सीलोटम. एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया पहला क्लास क्या है? अब आ जाओ क्लास नंबर 2. दूसरा क्लास का नाम है, इसमें सब एग्जांपल भी आपके कवर होंगे, लाइकोप्सिडा. ओके, लाइकोप्सिडा इज अ नेम एंड दिस ग्रुप लाइकोप्सिडा इज लिटिल मोर एडवांस. जिसको हम लोग, जिसमें क्लब मॉसेस इंक्लूडेड है. मतलब इनमें वो कौन दिखेगा? व्हाट इट शोज? स्ट्रोबिलस और कौन इज प्रेजेंट. इनमें वो स्ट्रोबिलस या फिर कौन प्रेजेंट होता है. तो मैंने हिंट दिया है, आप लोग इसका एग्जांपल बोल सकते हो, बता सकते हो. यू नो दैट. क्या एग्जांपल होगा इसमें? लाइकोप्सिडा है तो लाइकोपोडियम इज द एग्जांपल. Lyco. और हाँ, और सेलाजिनेला, दैट आल्सो यू कैन ऐड. एग्जांपल्स आर लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला. मैंने ये थोड़ी देर पहले बोला था, सेलाजिनेला को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? संजीवनी. डू यू रिमेम्बर दैट? संजीवनी बोलते हैं उसको. समझ में आया? जो हनुमान जी ने इसको ही ढूंढा था, वो पूरा पहाड़ उठाया था, संजीवनी बूटी. लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, दीज आर द एग्जांपल्स. इजी? कॉन्फिडेंट? बोलो Yes, बच्चों. sir. आगे बढ़ो अभी. नाउ थर्ड ग्रुप और थर्ड
क्लास है इनका जिसका नाम है स्पेनोप्सिडा। स्पेनोप्सिडा। अब ये स्पेनोप्सिडा का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इनमें भी वो कोन दिखता है और इसमें हॉर्स टेल्स आते हैं। एक्वेसिटा मींस एग्जांपल, दीज आर कॉल्ड एज हॉर्स टेल्स। बाकियों को बोलते हैं फर्न। हॉर्स टेल्स बिकॉज इनके लीव्स छोटे छोटे होते हैं, घोड़े के पूंछ के जैसे दिखेंगे। हॉर्स टेल्स एंड एग्जांपल इज योर एक्वेसिटम। क्लियर है? और आखिरी ग्रुप है भी आपका, दैट इज गोइंग टू बी, yes, it will be Pteropsida. Pteropsida. Now this Pteropsida सबसे बड़ा ग्रुप है, ये लार्जेस्ट ग्रुप है और इसमें बहुत सारे फर्न आते हैं। इसको ही हम लोग कॉमनली बोलते हैं फर्न। क्या बोलेंगे इसको हम लोग कॉमनली? फर्न बोलेंगे। एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल में आएगा आपका अब इसमें टेरिडियम। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर टेरिडियम, which is also known by another name as a sun fern. ये याद रखना जरूरी नहीं है आप लोगों को, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है। Then another example you can have is Sir. Dryopteris. बोलो। तो स्पर्मेटोफाइटा बोलो। किसमें आता है? वो लास्ट के दो ग्रुप, स्पर्मा मतलब सीड, सीड मतलब कौन? जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये नॉन स्पर्मेटोफाइटा। क्लियर है? बोलो जल्दी जल्दी। यस सर। ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस को कॉमनली बोलते हैं ब्रुक शील्ड फर्न, पर आप लोग मत रखो, ये कॉमन नाम याद रखना जरूरी नहीं है। एडिएंटम, लास्ट वन, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया था नीट में। एडिएंटम को कॉमनली क्या बोलते हैं? तो इसको कॉमनली बोला जाता है वॉकिंग फर्न। बच्चों इसको मार्क करके रखो, वॉकिंग फर्न। इज इट क्लियर? बोलो। वॉकिंग फर्न और एडिएंटम, this was the question asked in the NEET examination, so you should know about, asterisk बनता है इसके लिए। ठीक है, चार ग्रुप समझ में आया कौन सा है? सीलोप्सिडा, तो इसका नाम है सीलोप्सिडा, तो एग्जांपल है सीलोटम। देन लाइकोप्सिडा बोला तो लाइकोपोडियम, स्पेनोप्सिडा बोला तो इक्विसेटम है, और टेरोप्सिडा बोला तो टेरिस, या उसको ही हम लोग बोलते हैं ये टेरिडियम। सब टेरी टेरी नहीं है इसमें, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस। क्लियर है बच्चों? समझा क्या? तो ये जो सेलाजिनेला, ये इसको जरा हाईलाइट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में सबसे आगे आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें जो जाइगोट बनता है वो ओव्यूल के अंदर बनता है। तो ये सेलाजिनेला में जो जाइगोट बनेगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो एंडोस्पोरिक होता है, मतलब ओव्यूल के अंदर होता है। और ये एक ये वाला एक फॉरवर्ड स्टेप है which is an indicating evolutionary advancement. You can remember endosporic development of female gametophyte or that megaspore. ये एक चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है बच्चों, हो गया? अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसमें ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, सेम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये रिपीट करेगा। जैसे कि क्या, सबसे पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगा? मैं लिखूं इधर या सुन रहे हो आप लोग ऐसे ही? सबसे पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये भी क्या प्रिवेंट करेगा? प्रिवेंट्स सॉइल एरोजन। ठीक है, जैसे पिछले वाले ग्रुप में हमने पढ़ा था, लाइक दैट। इसमें जो एक्वेसिटम है ये वाला, इसका एक इंपॉर्टेंस है कि ये मेटल पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है। मेटल पॉलिशिंग, एग्जांपल क्या है इसमें? एक्वेसिटम। फिर ये जो मार्सिलिया इज वन मोर एग्जांपल यू कैन रिमेंबर। वो फूड की तरह वाला? एक्ट करता है। यस एग्जैक्टली, फूड एग्जांपल है मार्सिलिया। ऑलराइट, तो उसमें मार्सिलिया स्टार्च इज बहुत ज्यादा यूज्ड एज अ फूड। प्रेजेंट होता है। Exactly, good one. And then even they are used in making medicines, तो medicinal value भी है इसका।
जैसे टॉनिक में वगैरह यूज किया जाता है, होम्योपैथिक मेडिसिन में यूज किया जाता है। कौन? स्पेशली ये वाला लाइकोपोडियम, इधर गया ये। डायोपेरेटिस। इवन ये लाइकोपोडियम इज यूज्ड इन अ टॉनिक्स। ऑल्सो होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये सेलाजिनेला तो संजीवनी भी है, ये भी हम लोगों ने सुना हुआ है। ये रहा इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सर आई होप यू ऑर्नामेंट ऑल की आर गुड। तरह हाँ जी, हाँ, काम वो करता तो है है। फॉर्म। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सॉइल को होल्ड करता है, वो भी है ना, तो सॉइल बिल्डर भी बोलते हैं इसको। ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है, ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं, सो ऑर्नामेंटल प्लांट्स। so these are all economic importances. कोई शक बच्चा लोग किसी को? anybody any doubt with this group, this division? बताओ बताओ बताओ, चलो, किसी को कुछ पूछना है? आर यू ऑल कॉन्फिडेंट? बोलो बच्चों, अरे कहो। Yes, सर sir. Yes, sir. एजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम हाँ, करता है, ये वही मैंने ट्रूमैन में बताया दिया हुआ। ऑलरेडी कि मैंने बताया आपको, एजोला नाम का एक एक्वाटिक फर्न है जिसको साइमल्टेनियसली ग्रो किया जाता है राइस क्रॉप्स के साथ में। तो उसके अंदर एनाबेना नाम का नाइट्रो, ये ब्लू ग्रीन अलगे रहता है, और वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा। तो वो नाइट्रोजन कौन यूज करेगा? राइस क्रॉप्स, और उसका ईल्ड बढ़ता है। कम से कम 25-30% राइस का ईल्ड इस मेथड से बढ़ाया गया है। समझ में आया क्या बच्चों? लेगुमिनस प्लांट्स। हाँ, वो एनाबेना नाम का एक ब्लू ग्रीन अलगा है जो इसके अंदर रहेगा, एंड वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा। तो एनसीईआरटी रिव्यू करें क्या हम लोग? बताओ मुझे, एक फटाक से नजर डाले एनसीईआरटी के ऊपर। अरे कम हो गए बच्चे, कौन गया मीटिंग में से? तो फटाफट अभी फोटोग्राफ देख लो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिर ये वाला यूनिट, ये टॉपिक भी खत्म ना बच्चों। यस सर। चलो अभी ये मेरा टिकना चाहिए बस। सर बड़ा पार्ट एंजियोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म है? एंजियोस्पर्म्स, ऑफ कोर्स। ये लो, ये रहा आपका एनसीईआरटी। फटाफट फटाफट नजर डालो, क्या बोल रहा है? इट इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स, देन सर आज टेरिडोफाइट्स एक आर यूज्ड स्कूल इन में मेडिसिन। क्वेश्चन आया था। आज स्कूल में एक छोटा सा टेस्ट दिया था, तो उसमें क्वेश्चन हम्म, था कि कौन से प्लांट सबसे ज्यादा हाइट रीच करते हैं? हाँ, रेडवुड ट्री एंजियोस्पर्म ही है, 400 फीट कैलिफोर्निया में है। समझ में आया? उसके बाद यूकेलिप्टस है 400 फीट, वो भी सर एंजियोस्पर्म है। ऐसे नहीं, मतलब उसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर टेरिडो। एंजियोस्पर्म्स, आई सेड ये देखो, कहाँ रहते हैं एंजियोस्पर्म? सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, कूल डैम शेडी एरियाज में रहते हैं। फिर ये सैंडी सॉइल में भी रह सकते हैं। अब इसमें दो फेजेस होंगे, गैमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज, और ये इंडिपेंडेंट होंगे दोनों एक दूसरे के ऊपर। जो स्पोरोफाइट है उसमें रूट है, स्टेम है, लीव्स है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। फिर वैस्क्यूलर बंडल्स है, पर वो मैंने बताया थोड़े कम एडवांस्ड होते हैं। फिर इनमें लीव्स देखो, लीव्स के दो टाइप्स, माइक्रो fields जैसे which is in the सेलाजिनेला, मैक्रो एज इन केस फर्न। फिर इनमें स्पोरेंजिया होते हैं स्पेशल लीव्स में, और उन लीव्स को हम लोग बोलेंगे स्पोरोफिल्स। बराबर है? यस फिर सर। कभी कभी ये स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोबिलस और कोन, फाउंड इन सेलाजिनेला एंड इक्विसिटम। मैं वो वीडियो भी शेयर करूंगा आपको। अब सर यही स्पोर्स कॉम्पैक्ट क्या किस हो गए? किस में होगा? यही ना, सेलाजिनेला में और इक्विसिटम में, दिस इज मेंशन्ड ऑलरेडी। सर लेकिन फिर क्यों होगा, मतलब अगर वो कुछ नहीं, इट इज एक्चुअली वो इवोल्यूशन दिखा रहा है, क्योंकि इसके बाद में हम लोग अभी मेल कौन फीमेल कौन ऐसे पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स में। यही चीज हुई और एडवांस हो जाएगी अगले डिवीजन में। वहां पे हम लोग उसको मेल कौन फीमेल कौन बोलेंगे। समझ में आया? यस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। स्पोरेंजिया का क्या होगा? दे विल, अच्छा, वो स्पोरेंजिया में स्पोर्स है, स्पोर्स मियोसिस से बनेंगे, स्पोर मदर सेल से। ये मैंने लाइफ साइकिल में बताया, आप लोगों को याद है? बोलो बच्चों। यस स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे? दे विल गिव राइज टू
स्मॉल मल्टीसेल्यूलर, क्या बनेगा मल्टीसेल्यूलर? गैमेटोफाइट। क्या बनेगा? गैमेटोफाइट बनेगा। ये लो, ये इमेजेस है, ये आपको आइडेंटिफाई करने को आने चाहिए। पहला वाला इमेज किसका है? दिस इज A is your Selaginella, देखो ये वाला Selaginella। B is your Equisetum, देखो छोटा सा इमेज है ये वाला, इसमें स्ट्रॉबिलस दिख रहा है ना एक्वेसेटम में, कैन यू सी दिस? यस सर। बोलो बच्चों, ये है कोन, ठीक है। सेलाजिनेला में भी होगा, यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं, आपको यहाँ पे इधर इधर ऐसे ना, ये उसके कोन्स है, बट यहाँ पे डिस्टिंक्ट सर नहीं है। ये हॉस्टल एक्विसेटम में आता है कि फंड? अरे फर्न और हॉर्सेल दो ग्रुप्स है। फर्न में इट विल हैव लार्ज साइज लीव्स, और जो हॉर्सेल उसमें छोटे छोटे लीव्स रहेंगे, ये ऐसे लाइक सर दिस। क्योंकि ट्रूमैन में बताता है कि ये हॉस्टल एक्विसेटम में आता है, लेकिन कि गूगल पे बोलता है कि हॉस्टल फंड में आता है। नहीं नहीं नहीं, जिस लीव्स के साइज पे उसको हम लोगों ने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ये देखो, ये वाला ऑर्नामेंटल प्लांट है आपका, फर्न प्लांट, इसको हम लोग बोलते हैं फर्न, और नेफ्रोलेपिस उसी को बोलते हैं। अब लास्ट वाला है ये सैल्विनिया, दिस इज फोर्थ एग्जांपल। ये आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए आप लोगों को। अब क्या है आगे देखो, जो गैमेटोफाइट है उसको ही प्रोथैलस बोलते हैं हम लोग, जो हार्ट शेप का मैंने बताया था वो। फिर ये भी कहाँ ग्रो करेगा? कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में, वहां पे वो ग्रो करेगा। मतलब उसमें वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे, वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा। देन व्हाट नेक्स्ट विल हैपन इज दैट, इसमें अभी देखो गैमेटोफाइट्स होंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया। फिर वो पानी में फर्टिलाइजेशन होगा, और कभी कभी वो देखो जिनमें होमोस्पोर्स है उसमें बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट बनेगा, जो हेटेरोस्पोर्स है उसमें यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई मीन ये प्रोथैलस बनेगा। नाउ जाइगोट होगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा। ये सब रिपीट हो रहा है वापस एज इट इज। ये लो, होमोस्पोरस कौन कौन है? ये देखो, ये सेलाजिनेला और सैल्विनिया हेटेरोस्पोरस है, और बाकी के जो भी हमने पढ़ा था पी क्यूब एंड एडी, वो सब होमोस्पोरस रहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? जो हेटेरोस्पोरस है उसमें वो लार्ज स्पोर्स और स्मॉल स्पोर्स बनेंगे, और वो जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे हमें पता है। मेगा मतलब फीमेल, फीमेल बड़ी है तो ये बनाएगी फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रो मतलब मेल, वो बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। बस फिर उनमें भी वापस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, आर्किगोनियम एंड एंथ्रेडियम जो फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाएंगे, एंड देन सेम साइकिल विल बी रिपीटेड। तो ये जो जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, वो ओव्यूल के अंदर बनता है या उसके अंदर बनता है जहाँ पे वो जाइगोट बन रहा है, तो एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं उसको। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं वहीं से फिर सीड बनना शुरू हुआ रहेगा। सो इट्स द इवेंट which is a precursor of seed habit and it is one important step in the evolution. अब आ जाओ ये आपके चार क्लासेस। सीलोप्सिडा एग्जाम्पल सीलोटम, लाइकोप्सिडा एग्जाम्पल सेलाजिनेला, और लाइकोपोडियम है। स्पेनोप्सिडा इज एक्वेसेटम, और टेरोप्सिडा इज योर ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम और टेरिस। कोई शक? बोलो बच्चों, बताओ। नो सर। एनीथिंग यू वांट टू से? गर्ल्स कॉन्फिडेंट अबाउट इट? बोलो जैनब बच्चा। चलो फिर हो गया ये वाला ग्रुप खत्म। आई होप आप लोगों को भी एक बार रीड कर लो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, कुछ लगेगा कि नहीं समझ में आए तो पूछ लेना मेरे को, ठीक है बच्चों? यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। मिलते हैं हम लोग अभी थर्सडे को। थर्सडे को बचा हुआ दो ग्रुप्स खत्म करने की कोशिश करेंगे, कम से कम पूरा जिम्नोस्पर्म्स और आधा एंजियोस्पर्म्स। सो दैट विल बी द संडेज, आई मीन थर्सडेज टास्क। So till then, take care बच्चा लोग, बाय बाय। एंड सर 7:30 को एक्स्ट्रा क्लास है ना? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, 7:30 को कवर अप रहेगा जिन लोगों का वो चैप्टर मिस हुआ है। ओके सर। बाय किड्स, टाटा, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बच्चों।